So this is a dictionary called person one, then name, sex, age, and married, key and a value, key and value, key and value, right? So if you want to store a multiple columns, so this is nothing but similar to storing a multiple information. Suppose, let's take an example. Okay, so in this Excel file you have to store a roll number. Okay, sorry, roll number and his physics mark. So what I can do, I can create roll number as a key and physics mark as a value, right? Similarly, if I have to store a multiple information, physics, chemistry, maths, so what I can do is I can create roll number as a key and these three things as a list, tuple, or as a value. So this is what we have done here. If you observe, name, first name and last name I have created in the tuple format. It can be a list as well. It can be a tuple as well. But what is key? Key is a name, right? So same goes with the age, married, true and false. So it only accepts key and value pair. Slicing and indexing not possible. जो हम numbers देते थे, right? 1 2 3 start, end, -1 step, that thing is not possible here. So that is the indexing and slicing. Heterogeneous elements. Heterogeneous means it can store a different data types. जो homogeneous का opposite है heterogeneous, right? So different data type क्या है? What is the data type of this value? नहीं, वैल्यू क्या है इसमें से? ये है पूरा वैल्यू. So what is the data type here? Okay, what is data type here? You can tell 6, male. Male is, what is this data type? इसका data type क्या रहेगा? String. Okay, let's check. So copy, and how we can check a data type? Type, absolutely. This is string, and I asked you for this. कॉपी, इसका भी डेटा टाइप चेक कीजिए. Tuple, because parenthesis, don't forget this parenthesis separated by comma. इसका डेटा टाइप क्या है? hmm? Okay, let's check. Boolean, right? Absolutely. Good. So you can store, so this is a heterogeneous collection. Then denoted by curly bracket. Curly brackets are here, right? Sorry, here curly brackets. This, okay. Alright. Okay. So you can see how I have written a list. Curly bracket start and curly bracket end, right? And inside this, these are the elements. So इसमें से ये सब कुछ क्या है? These are the keys, and ये remaining data, ये है value. Okay. चलो, so how we can print, create तो ऐसे directly you can create. Let me execute this and execute this. Now I want to access the element access करना है, तो मतलब 32 मुझे एज अ आउटपुट चाहिए. जैसे लिस्ट में से हम नंबर्स बाहर निकालते थे, राइट? टपल में से, सेट में से. सो आई कैन डू इट यूजिंग अ की. तो डिक्शनरी का नाम लिखना है, एंड जैसे हम इंडेक्सेशन करते थे वैसे ही आई डायरेक्टली हैव टू गिव अ की एज इन ये नेम, सेक्स, एज, मैरिड, these are the key. Suppose married, print true, right? Clear? So this is one of the way. Then
How you can create dictionary? You can create dictionary using dict as an inbuilt function, and inside this you can pass these arguments. फंक्शन के अंदर आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. देखिए नेम, sex, age and married, and if you execute you will get a dictionary as well. और इसका डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो, कॉल्ड डिक्शनरी. ओके, क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी, राइट, ये ऐसे हम लिखते हैं बहुत बार. ओके, set 1. By the way, if you observe here, so this is empty list, empty tuple. तो empty dictionary में ऐसा confusion हो जाएगा आपको, क्योंकि set भी curly bracket से ही लिखते हैं हम, और dictionary भी curly bracket से ही लिखते हैं. So what will be the answer here? Can anyone guess? सेट साठी सेट लिहावा लागेल, सेट आणि क्लोज ब्रॅकेट आणि Yeah, absolutely. So you need to write a set as a function. आप directly set create नहीं कर सकते. Let's see यहाँ पे क्या आएगा and then you will get to know. Execute, check the data type. इसका list 1 का data type check कीजिए. Sorry, okay, you need to check the type of set 1. ये एक्चुअली क्या था, सेट हमने एम्प्टी क्रिएट किया है, और ये क्या है, डिक्शनरी. तो क्विकली चेक कीजिए, पहले तो डिक्शनरी का चेक कीजिए. डिक्शनरी, राइट. टपल, if you want confirmation, टपल. नाउ सेट 1 का चेक कीजिए. सेट भी ऐसे ही लिखते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, डिक्शनरी. तो एम्प्टी पैरेंथेसिस से नहीं होगा. यू नीड टू क्रिएट अ सेट. सेट एज अ फंक्शन आपको वो देना पड़ता है ऐसे. सेट नाम का इंटरनल एक फंक्शन आपको पास करना पड़ेगा, इनबिल्ट फंक्शन. ओके, okay, just a second. I am getting one important call. हॅलो, हा झालं का बोलणं तुमचं? ठीक आहे ना, एक आज आणि उद्या 2 दिवस द्या, मग नंतर आपण बोलू येऊन. कारण आता जाता का मग घरी? नाही नाही, म्हणजे काय काय नाही, आज आणि उद्या. आज आत्ता करायचं होतं 6:30 वाजता. हा. हम्म, हम्म, ठीक आहे, चालेल. ओके. Okay, set. So this is how you can create an empty set. Sometimes to confuse you, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. Generally they will start with the empty list. आपको पहले बोलेंगे कि empty list create कैसे करते हैं, right? It will start from there. Okay, फिर आपको dictionary and then they will ask you to create a set. तो आप by default क्या करते हो, you will write a curly bracket, and then they might ask you, are you sure whether you can do it? तो आप करके देखोगे, then print होगा dictionary, then you will get confused, और वहां से थोड़ा आपको confidence कम हो सकता है. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपको, मतलब इंटरव्यूअर में आस्क यू, इंटरव्यूअर आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये चीजें आपसे ही कैन एक्सपेक्ट. ओके, तो इसीलिए आप ये छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स है, और ये मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये जनरली आप बहुत कम बार यूज करते हो और आपको कोई गाइड भी नहीं करेगा.
at that time. So that's why it's good, आपको ये एज अ रेफरेंस आपने किया है और यूज किया है ऐसे. ओके, सो गुड. सो नेक्स्ट, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे पता चला आपको? की वैल्यू पेयर, एक्सेसिंग द एलिमेंट, एक्सेसिंग द एलिमेंट कैसे करते हैं? सो व्हाट वी कैन डू इज, you can create or you can okay, this is just a reference, this is our person one. You can use age, मतलब की यूज करना है, इन शॉर्ट एज एज इन की यूज करना है. Then person one, if I want to get this value, so just a second. Okay, so you can use the keys, right? की एंड वैल्यू पेयर में से की आपको यूज करना है टू गेट द वैल्यू. बट व्हाट इफ ऐसा, देखिए यहाँ पे एड्रेस कहीं पे है क्या, वैल्यू, एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, तो क्या होता है एक बार चेक कर लीजिए. देखिए यू विल गेट एरर. एरर क्या है? की एरर, क्योंकि दैट की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा, दैट्स व्हाई यू गेट दैट एरर. तो कैसे चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं है? यू कैन यूज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. देखिए, नेम इन पर्सन वन, इफ यू प्रिंट दिस आपको ट्रू आ जाएगा, और एड्रेस, एड्रेस इन पर्सन वन फॉल्स. सो इट विल मेक श्योर कि आपको अवेलेबल की है या नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं. ओके, राइट. पर्सन वन जनरली क्या होता है ना, ये की अवॉइड करना पड़ता है. लाइक इफ यू ट्राई टू प्रिंट समथिंग, ये एरर आ जाता है, आपको ये एरर अवॉइड करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन यूज डॉट गेट. एक मेथड है, जैसे स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, और स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज. वैसे ही लिस्ट के कई मेथड है, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, लिस्ट डॉट मिन मैक्स, सॉर्टेड, ऐसे बहुत सारे. वैसे ही डिक्शनरी के मेथड है, उसमें से एक मेथड है कॉल्ड डॉट गेट. तो ये क्या करता है,
दिस विल मेक श्योर कि आपको की है तो यू विल गेट आंसर, की नहीं है तो यू विल गेट सम डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, मान लीजिए अभी आपको चाहिए नेम। ओके, ये देखिए नेम, एंड इसे कैसे लिखना है ये देखिए, पर्सन डिक्शनरी का नाम डॉट गेट और ये नेम। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वन मोर टेक्स्ट एडिशन मैंने दिया है। ये इंश्योर करता है कि नेम के ऊपर एरर आ रहा है तो मुझे आउटपुट में ये मिलेगा। ओके, लेट्स चेक, डॉट गेट एग्जीक्यूट जॉन डो, राइट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा, एड्रेस नहीं है मेरे लिस्ट में, राइट, तो ए एड्रेस प्रिंट, इस बार एरर नहीं आया बट ये जो बाय डिफॉल्ट लिखा है ये वैल्यू आ गया, राइट। हाँ, हे यूज नॉट, दरवेळी तुम्ही इन नॉट इन चेक करत बसण्यापेक्षा डायरेक्टली हे करा, जर आन्सर हे आलं इथं की नॉट अवेलेबल तर तुम्हाला कळून जाईल दॅट की इज नॉट अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू, मतलब आपको वैल्यू वगैरह चेंज करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, कि आपने असाइन किया, आपको वैल्यू चेंज करना है तो डायरेक्टली यू कैन, पहले तो एक्सेस कीजिए, आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन टू। ओके, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ओके, नॉट कॉलेबल, okay, I need to restart the kernel. So what I'm doing now, suppose I want to change this person married, false लिखा है, but then I want to change married to true. Okay, तो कैसे सर करना है, मॅरिटला कोटेड द्यावं लागेल, का गरज नाही पडत? जस्ट इथं का, हां, ते पूर्ण कोटेड नाही द्यावं की आहे ना, लागेल. दॅट इज की, कीच एवढं नाही संबंध आहे, लेट्स सी, झालं वर्क, यू कैन सी वन इज हियर। ओके, ये आता है जनरली बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम फाइल फॉर मल्टीपल बैच, अलग अलग बैच के लिए एक ही फाइल यूज करता हूँ ना, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक कुछ रैंडम वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं, वो जनरली प्रॉब्लम आता है। यू मे नॉट सी दिस काइंड ऑफ एरर बट कभी आया ऐसा, हाँ, सो जनरली वो रैम क्लियर नहीं होता ना, तब आपको ये इशू आ सकता है। ओके, तो मेक श्योर आपको मतलब आपने सब कुछ सही लिखा है, फिर भी ये एरर आ रहा है तो एक बार आप कर्नल रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज की एंड वैल्यू पेयर। अभी मुझे मैरिड का वैल्यू चेंज करना है, पहले तो मैरिड में क्या वैल्यू है ये निकालिए, पर्सन टू और मैरिड, राइट, ऐसे लिखते हैं, फॉल्स, दिस इज व्हाट इट इज, मतलब यही वैल्यू है इनसाइड, तो इसको क्या कर दीजिए, डायरेक्टली आप पर्सन टू, सॉरी ये बीच में कुछ अलग कोड है, पर्सन टू मैरिड इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। ओके, एग्जीक्यूट, अभी पर्सन टू एक बार प्रिंट करके देखिए, तो डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, जैसे हम इंडेक्सिंग में भी करते थे, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट दो और तीन इंडेक्स एनी इंडेक्स एंड देन इज इक्वल टू करके आप कुछ भी वैल्यू देते थे तो ये चेंज हो जाता था इंडेक्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। व्हाट इफ आपको नया की एंड वैल्यू पेयर ऐड करना है, ओके, आपको ये ऐड करना है नया की एंड वैल्यू पेयर, तो कैसे होगा, हाउ यू कैन डू इट, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। डायरेक्टली राइट अ डिक्शनरीज नेम कॉल्ड पर्सन टू, एंड आपको कौन सा की चाहिए वो लिखिए,
हॅलो, उबर मध्ये बुक केलं होतं तुमचं राईड? नाही, आत या सोसायटीच्या आत. स्वप्न संकुल म्हणून सोसायटी आहे. दिवा लावलाय ना वर? दिवाळीचं ते दिवा आहे आणि हे, हा लाइटिंग लाइटिंग. आत जावा, एकदम गेट वरती आहे, सिक्युरिटी गेट वरती आहेत ते. हा आणि हा 1713 आहे बघा ओटीपी. 1713 ऍक्टिव्हेट करा ओटीपी. ओके, सॉरी. एड्रेस टू डायरेक्टली आप नया की ऐड कर सकते हो इसमें, एंड देन यू कैन गिव एनी एड्रेस. ये देखिए, देन करंट एड्रेस नाम का एक की आपने लिखा, और उसमें करंट एड्रेस विच एवर निवास. देन इफ यू प्रिंट, तो आपको ये देखिए करंट एड्रेस और उसका वैल्यू, एड्रेस एंड उसका वैल्यू ऐड, right? So this is how you can execute new address and you can add the address. आप डायरेक्टली की यूज करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो नया की ऐड करके यू कैन गिव द न्यू वैल्यूज. की एंड वैल्यू पेयर आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया हाउ वी कैन एक्सेस डिक्शनरी, कैसे बनाते हैं, की वैल्यू पेयर कैसे एक्सेस करते हैं, राइट? गुड. सो then person to name, there is a new method called update. एक update नाम का भी मेथड है. फंक्शनैलिटी सेम है, जैसे डॉट गेट का है वैसे ही अपडेट. यू कैन गिव, हेलो हेलो, you can use dot update method which will add key and value pair. सेम जैसे हमने डायरेक्टली किया था. करंट एड्रेस के बाद मोबाइल एंड ऑफिस. सो ये मोबाइल इज इक्वल टू ऑफिस इज इक्वल टू हमने लिखा है, दैट इज व्हाट इट इज बीन एडेड हियर, राइट? अंडरस्टूड? सो फ्यू मोर एग्जांपल सच एज ए कार का भी एग्जांपल लिया है. वन, एज इन की में आप नंबर भी ले सकते हो. दिस इज व्हाट वी वांट टू हाईलाइट हियर. ओके, मतलब हमने जो ऊपर दो तीन एग्जांपल लिए थे उसमें की सिर्फ आपका स्ट्रिंग था, बट आई कैन सेट कीज टू नंबर एज वेल, राइट? जैसे हमने अभी रोल नंबर का एक एग्जांपल देखा, राइट? चलो लेट्स क्रिएट दैट. ये रोल नंबर का एग्जांपल. तो डिक्शनरी का नाम क्या है? स्कूल. और एट्थ डिवीजन. ओके, एट्थ DIV. होता है कैसे ऐसे? होप MCQ सॉल्व किया है प्रॉपरली. अरे छोड़ो. स्कूल. You know biggest challenge people face in the company. बहुत मुश्किल, वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजन हर रोज वो फेस करते हैं. कौन सा है, किसी को पता है क्या? इवन यू विल आल्सो फेस. यस, वेरिएबल वेरिएबल का नाम नेमिंग. क्या रखना है? बिकॉज अभी मैंने 8th स्टैंडर्ड है, सम रैंडम नंबर रख रहा था, बट देन आई रियलाइज 8 विल नॉट वर्क, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ अपने सारे क्लाइंट यूएस के हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डॉलर रूपी, करेंसी इन डॉलर, तो डॉलर सिंबल यूज करते हैं बहुत बार. सो आपको बहुत टाइम लगता है समझने के लिए कि दैट वेरिएबल डज नॉट वर्क बिकॉज डॉलर सिंबल है उसमें. So one of the hardest problem. चलो, स्कूल इज इक्वल टू, आई विल क्रिएट ए डिक्शनरी जहाँ पे रोल नंबर हमारे कीज है. तो रोल नंबर क्या है इनका? 1 एंड 2. चलो इनके लिए बताते हैं हम. सो लेट्स क्रिएट की एंड वैल्यू पेयर. की में 1 आएगा, वैल्यू में क्या आएगा? मार्क्स लिख दीजिए डायरेक्टली. 56, 57 एंड 58, समथिंग लाइक दिस.
सो आई विल क्रिएट अ लिस्ट, नहीं तो मार्क्स है ना, इट शुड बी टपल, मार्क्स यू कैनॉट चेंज, समथिंग 57, 58 एंड 59, राइट, ऐसे ही था, कॉमा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, नंबर 2। बाय द वे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम जस्ट मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड। इंटर 2 को लिखिए वट एवर नंबर ही हैज, कितने हैं, 23, 24, 25, 23, 24, 25, right, something like this. So this is my dictionary. So if I execute, हो गया, स्कूल का डिक्शनरी आप प्रिंट करो, कॉपी एंड एग्जीक्यूट, राइट, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन इट इज। बट आप बोल रहे होंगे कि सर ये कहाँ है, रोल नंबर ऐसा टाइटल कहाँ है, ये फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये 24 को किस सब्जेक्ट के मार्क है, क्या है। सो मुझे ऐसा दिखना चाहिए प्रॉपर, ये टेबुलर डेटा है, तो कैसे करना है फिर, एनीवन हैज एनी आइडिया? ये अच्छा नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मैं तो एक काम तो कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसा ये एक्सेल फाइल में आपको डेटा दिखता है, सेम डेटा आपको पाइथन में भी दिखेगा, बट फॉर दैट यू नीड टू लर्न पांडास। पांडास में देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड डेटा फ्रेम, जैसे यहाँ पे डिक्शनरी है, वहां पे डेटा फ्रेम है, तो उसमें एग्जैक्टली जैसे एक्सेल में दिखता है, सेम वहां पे दिखता है, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ना आपको काम करने के लिए। ये बैकग्राउंड में वो डिक्शनरी ही यूज करता है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी है, राइट, सो दैट इज कॉल्ड अ डिक्शनरी इन डिक्शनरी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है। गुड। सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इट सेज इज, जो कीज आप बना रहे हो, ये कीज यहाँ पे मैंने 1 2 3, ये देखिए ये कीज है, दिस शुड बी इम्यूटेबल, ये डिक्शनरी का एक रूल है। इम्यूटेबल मतलब क्या क्या, कैन आई सेट अ लिस्ट एज अ की, लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? म्यूटेबल मतलब क्या है, हाँ, ये फॉर्म चेंज होता है, राइट, तो लिस्ट का फॉर्म चेंज होता है क्या, राइट, लिस्ट डॉट अपेंड है ना, तो लिस्ट एज अ की मैं यूज नहीं कर सकता, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज, ओके, क्योंकि अभी हमने पहले स्ट्रिंग यूज किया था, अभी नंबर यूज कर रहे हैं, सो दैट इज वन थिंग विच वी वांटेड टू हाईलाइट। बुलियन भी आप यूज कर सकते हैं, देखिए ट्रू लिखा है, बुलियन एज अ की और उसका वैल्यू ऐसे, ओके। डिक्शनरी यू कैन एग्जीक्यूट 1 2, मतलब ये डिक्शनरी का एग्जांपल है कि नंबर टू स्ट्रिंग, ऐसा कन्वर्जन, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 546, तो मुझे टेक्स्ट में लिख के आना चाहिए 546 रुपीज, ऐसा, तो वो आपको अचीव करना है, तो दिस इज व्हाट इट इज। उसका आई गेस एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट, सॉरी, कन्वर्ट द डिजिट्स इनटू न्यूमेरिकल, और नहीं तो उनके टेक्सचुअल फॉर्मेट में, मतलब 99 लिखा तो मुझे क्या आना चाहिए, 99, राइट, इफ आई राइट 10 तो आंसर क्या आना चाहिए, 10, इफ आई राइट 1000 तो आंसर क्या आना चाहिए, 1000, ऐसे। तो ये जो है ना नंबर टू स्ट्रिंग, उसका ये आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो, और ये आपको होमवर्क में लेना है। मैं नंबर टाइप करूंगा, उसके हिसाब से वो लिख के आना चाहिए। 1 to 99 करो आप, डोंट, इफ यू वांट टू गो हायर यू कैन गो टू हायर 3 लेवल, मतलब 3 यू है नंबर वाले, ओके, मतलब 223 लिखा तो आपको लिख के आना चाहिए 223, ऐसे, क्लियर, ओके, चलो, सो आपको कुछ डिलीट करना है वैल्यू, सो व्हाट यू कैन डू इज, डिलीट करना है तो
you can directly use del keyword, डिक्शनरी नाम एंड उसका की। इस वेरिएबल जैसे डिलीट होता है वैसे ही सिमिलरली आप ये डिलीट कर सकते हो। ओके ओके देन देर आर मेथड्स, मतलब हमने क्रिएशन देखा, अपडेट देखा, एक्सेस कैसे करना है एलिमेंट वो देखा, देन नेक्स्ट वन इज अ मेथड। इसके बाद यू विल गेट कॉम्प्रिहेंशंस एंड ऑल, सो वो चीजें हैं। मेथड्स एक हमने देखा था डॉट गेट, देन सेकेंड डॉट अपडेट। सिमिलरली वी हैव फ्यू मोर मेथड्स, ऐसे मल्टीपल मेथड्स है हमारे पास। देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉप। पॉप में आपको क्या पास करना पड़ता है, एड्रेस, तो वो क्या करेगा, नंबर डिलीट कर देगा। सेम वर्क्स विथ लिस्ट, सेम वर्क्स विथ पॉप। और किसके साथ वर्क होता है, टपल, आर यू श्योर? टपल इज नो सर। इम्यूटेबल। उसके बाद नेक्स्ट सेट में भी सेट। हमने किया था ना। सेट में, फ्रोजन सेट में होता है क्या? नो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट? फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, जैसे लिस्ट एंड टपल है वैसे ही सेट एंड फ्रोजन सेट है। सेम डिफरेंस, वो याद रखिए। जो लिस्ट पे अप्लाई है वो सेट पे, जो टपल पे है वो फ्रोजन सेट। ऐसे सो फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड्स आर डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स क्या करता है, आपको की एंड वैल्यू का टपल और ये सारे टपल का लिस्ट, मतलब एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर टपल्स है और हर एक टपल एक की एंड वैल्यू पेयर है। ये हमें मिलता है डॉट आइटम्स करके एक मेथड है इससे। इससे एक आसान है, पर्सन डॉट कीज। डॉट कीज ऐसे लिखा मैंने, तो क्या आना चाहिए, जितने भी मेरे कीज है वो प्रिंट होते हैं, राइट? ये डिक्शनरी है, इसमें से मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है, ये सारे ये वाले। तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्शनरी का नाम डॉट कीज, क्योंकि ये सारे कीज है ना। और फिर इसके लिए क्या लिखना है, फिर ये क्या है, वैल्यूज। तो डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, यहाँ पे है देखिए, आ गया, राइट? तो ये एक्चुअली आपको की एक्सट्रैक्ट करना है तो यूज कर सकते हैं आप। फॉर ए इन पर्सन टू डॉट कीज प्रिंट ए, तो सारे कीज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि व्हाट इज दिस, ये क्या है, लिस्ट है ना। स्क्वायर ब्रैकेट, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, दिख रहा है ना, कॉमा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये क्या है, लिस्ट। और लिस्ट को हम कैसे इटरेट करते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन किसमें, पर्सन डू डॉट कीज, मतलब यहाँ पे क्या है, लिस्ट है एक। ओके, फॉर ए इन लिस्ट प्रिंट ए, तो उस लिस्ट में से सारे एलिमेंट वो प्रिंट करेगा, राइट? और वैल्यूज प्रिंट करना है तो फॉर टेम्प इन पर्सन टू डॉट वैल्यूज, तो सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एज इन वैल्यूज आइटम्स क्या करता है, दोनों कॉम्बिनेशन में देता है, तो उसके लिए कैसे करना पड़ता है आपको, ऐसे फॉर एक्स कॉमा वाई, दो टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा इन किसमें, पर्सन टू डॉट आइटम। तो ये क्या हो गया, एक टपल आ गया, और एक टपल में से नेम किस में जाएगा, एक्स में, और ये वैल्यू किस में जाएगा, वाई में, एंड द की इज एक्स एंड वैल्यू इज वाई। ओके, ऑब्जर्व, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर क्या है, ये क्या है, लिस्ट, राइट? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट जहां पे भी दिखे वो लिस्ट है, हो गया। इसके अंदर क्या है वो मत देखिए, ठीक है? लेट मी कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, कॉपी, ये देखिए, ये क्या है, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये लिस्ट है। ये
अंदर का ये भूल जाइए, इसके अंदर क्या लिखा है ये भूल जाइए, ये रेड लाइन इग्नोर। क्या दिख रहा है? लिस्ट दिख रहा है। और लिस्ट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? फॉर टेम्पररी वेरिएबल फॉर टेम्प इन लिस्ट, तो हमें टेम्पररी वेरिएबल मिलेगा, मतलब एक इटरेटर मिलेगा। ये एक हो गया, इसके एक इटरेटर आएगा, इसके आगे कॉमा करके ये आएगा, यहाँ पे एक आएगा, राइट? ऐसे ही रहता है ना, दो कॉमा के बीच जो एलिमेंट रहता है उसके ऊपर इटरेटर आता है, ठीक है? अभी ये इटरेटर यहाँ पे आ गया लाइन, ये जो रेड कलर का लाइन है यहाँ पे आ गया, बट इसमें क्या है? इनसाइड दिस, अभी ये इग्नोर, इसमें अभी रेड लाइन किसके बीच में है? दो पैरेंथेसिस के बीच, मतलब ये क्या है? टपल। तो दिस इज अ लिस्ट इज मेड अप ऑफ टपल्स, अलग अलग टपल का कॉम्बिनेशन करके एक लिस्ट बना है, और उस टपल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी टपल्स में से इंफॉर्मेशन निकालना है तो आई कैन डायरेक्टली यूज एक्स, और ये y हो गया, राइट? फिर यहाँ आएगा इटरेटर मेरा, उसमें से x क्या आएगा? ये आएगा, y क्या आएगा? ये आएगा। फिर इटरेटर यहाँ आएगा, इसको क्या होगा? x, और ये क्या आएगा? y। व्हाट इज हैपनिंग, एनीवन रिमेम्बर ये क्या कंसेप्ट है? वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू इनसाइड द टपल। अनपैकिंग सर। यस, एब्सोल्युटली, अनपैकिंग ऑफ टपल, पैकिंग एंड अनपैकिंग, याद है क्या? टपल इज इक्वल टू वेरिएबल लिखा था हमने, वही तो लिखा है अभी। टपल मतलब ये क्या है? दिस इज अ टपल कॉपी, और हम ऐसे लिख रहे हैं ना, वेरिएबल लिख रहे हैं, मतलब x कॉमा वाई इज इक्वल टू ये टपल। ये ऐसा ही देखा था ना, अनपैकिंग पैकिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ये देखिए और एक एग्जांपल है, तीन वेरिएबल का एक एग्जांपल लिया है, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। ओके, नेम वही है, डिक्शनरी एंड ऑल, फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। बाय द वे, शैलो कॉपी डीप कॉपी यहाँ पे भी है। ओके, नॉट एन इशू। सो वी विल कंटिन्यू विद डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी टुमारो, एंड हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बट आई वांट यू टू रिवाइज अनपैकिंग, पैकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया था वो आपको रिवाइज करना है, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी है आगे, तो इसीलिए यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर? इतना डिफिकल्ट नहीं है, नॉट टू वरी। ओके, होमवर्क, ट्राई टू डू यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी आप खुद 5 डिक्शनरी बनाइए विथ योर जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब कार से रिलेटेड बनाइए, मोबाइल रिलेटेड, जो आपको डे टू डे लाइफ में आते हैं। कार्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? मेक, मॉडल, इंजन, प्राइस, कलर, राइट? समथिंग लाइक दिस। ऐसे आप डिक्शनरी बनाए 5, और उस पे ये सारे करके देखिए। नया वैल्यू ऐड करना है, नया की ऐड करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, राइट? ऑल दिस थिंग्स, गेट, अपडेट। क्लियर होमवर्क? गुड। Okay then, so we will conclude our class here, Python class. Thank you, thanks a lot everyone. Excel we will start in 2 minutes.